and 13 of Companies Act 2013. This program is held underneath the Women on Wednesday initiative. This is an initiative by Central Council under the able leadership of C. Atul Malhotra ji. These events are held with a special focus on our female fraternity, and we attempt to bring to you best of the female speakers and finest content. Mohsin, we can wait for a minute. I think people are joining. Okay. I think so. Okay. It takes time to join. Okay. I'm your moderator for today's event. It gives me an immense pleasure to welcome you all to today's VCM on the topic compliances under Section 12 and 13 of Companies Act 2013. This program is held under the series called Women on Wednesday. This is an initiative by CIRC under the able leadership of C. Atul Malhotra ji. The idea behind this series is to bring to you the finest of our female chartered accountants as speakers, and also give the opportunity for our female viewers to get connected and feel to be a part of this family that has been predominated mostly by the male chartered accountants in other sessions. It gives me an immense pleasure to welcome C. Atul Malhotra ji, Chairman CIRC. He needs no introduction. His dedication, his selfless work for the fraternity speaks for itself. He has been with us he has been working for the community for more than 15 years now. He is a well-known figure in our chartered accountancy circle and also with the government. We have CA Sonia Thapa as Sessions Chairman with us today. She is a senior chartered accountant and partner at V. Rohati and Company, practicing as CA from 2010. FCA, she has she has done certificate course on forensic accounting and fraud prevention, certificate course in concurrent audit in banks, certificate course in Indian accounting standards, and has done MSc in value education and spirituality. She is one of the finest speakers from Jhansi, and she's also a well-known figure there. Our today's speaker, Ms. CA Manjari Sharma, is a qualified chartered accountant. As an associate member of Institute of Chartered Accountants, she is Masters in Commerce. She has good knowledge in the field of taxation, audit, accounting, and ROC filings. She is known for her active participation in various seminars and workshops. She has been speaker in seminar conducted by Jhansi branch on the topic TCS provisions of income tax, and Kanpur branch on the topic of Companies Act report and order 2016. I am confident that today we are going to have a very informative session. It is a great learning opportunity for each of us to learn from each other and also to overcome some of our hesitance and barriers. Please feel free to post your questions at the end of the session. Over to you, Ms. Manjari ji. No, before that, I think I just wanted to have 2-3 minutes to interact with our members. So, Mohsin ji, thank you so much for introducing and for sparing the time for this WOW series, which has been started by the CIRC, and it is getting more and more association of our female members. And as said by you, that we are always trying to involve our members, new members, so that their knowledge, their talent may be shared with our members, and the benefits of their knowledge can be availed by our members in larger number. So इसी कड़ी में सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 1 जुलाई को हम लोगों ने CA डे सेलिब्रेट किया है, और मैं ऐसा सोचता हूं कि हमको हर दिन ये याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं जो कि सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड है,
और इसी में आप सभी लोगों को सीए डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सीए डे से 4, 5, 6 दिन 7 दिन पहले से आवाज दी। ओके, इस बार सीए डे का सेलिब्रेशन आई एम नॉट ऑडिबल। Atul ji, you are audible. Manjari ji, I will request everyone, all the speakers who are not participating, can you keep yourself on mute? And Yes. You can unmute yourself when you have a chance to speak. Thank you so much. So, इस बार कुछ, क्योंकि हमारा देश में हमारी गवर्नमेंट आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रही है और हमारी आईसीआई को भी 74th सीए डे सेलिब्रेट करना है। तो इस कड़ी में बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत सारे छोटे शहरों में भी इस बार कुछ अलग तरह का उत्साह था। और हमारी जो इंस्टीट्यूट में जो हमारी पब्लिक रिलेशन कमेटी है, उसने भी हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, एफएम के माध्यम से ये कोशिश करी है कि ब्रांड बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाए और सोसाइटी एट लार्ज को ये पता चले कि हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ही नहीं हैं, बल्कि समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी भी हम केयर करते हैं। और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज के प्रोग्राम्स इस बार हुए। इसी कड़ी में CIRC ऑफिस जो हमारे 7 स्टेट का है, डिसेंट्रलाइज ऑफिस, वो कानपुर में है। हम लोगों ने भी यहाँ ऐसा एक प्रोग्राम किया जिसमें कि हम लोगों ने अपने 3 थीम को लेके, एक हमारा एनर्जी सेविंग पे, एक हमारा क्लीनलीनेस के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, ट्रैफिक रूल्स को लेके, इन सब थीम पे, और ह्यूमन इंडियन फ्लैग बनाया हम लोगों ने, सैफरन, वाइट और ग्रीन। और वैसे ही बहुत सारे स्लोगन लिख के जो हमारे किसी एक रोड पे आने जाने वाले लोगों को उससे अवेयर किया और इस प्रोग्राम को बहुत ही लोगों ने अप्रिशिएट किया। आज जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का एक फंक्शन जो बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है नवंबर में, that is being held, proposed on from 18th November to 21st November at Mumbai Geo Trade Center। इसमें करीब 118 सालों के बाद हमारे देश को, आईसीआई को ये मौका मिला है और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे प्रोफेशन का जो फ्यूचर है, जो बिगर पिक्चर है, आने वाले समय में क्या हमारे प्रोफेशन का क्या फ्यूचर होगा, किस तरह से हमको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, हमें ग्रोथ करने के लिए कैसे हम नेटवर्किंग में जा सकते हैं, बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन होगा। और मेरा तो निवेदन है आप सभी लोगों से कि जरूर प्लान करिए और जो एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उस पर जाके आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मोड में अटेंड करेंगे तो ज़्यादा उसका लाभ लिया जा सकता है। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है, बिकॉज क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको इनकम टैक्स की भी जानकारी है, कंपनीज एक्ट की भी है, जीएसटी की भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की भी है और किसी और एक्ट, सारे एक्ट की जानकारी है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो एटलीस्ट वी शुड बी aware or having a reasonable experience or knowledge of all these acts which are related with our profession. So it's very important. Manjari ji is there. Manjari Sharma ji is sharing his experience, his knowledge with us regarding this section 12 and 13 of the Companies Act. So without much more time, I straightforward hand over the mic to our moderator Mohsin Mirza ji, and Mohsin ji, now you will invite our Sonika Thapa ji. You will hand over the session to Sonika ji, and then she will be starting the session with her opening remarks, and thereafter Manjari will deliberate on the topic. Over to Mohsin Mirza ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Atul sir. This was really informative, and it is always good to know
the efforts that the institute are taking to give the due recognition to the profession and invite and make sure that the new joinees to the profession are well aware of the events that are happening around us. Over to you, Sonia Thabaji, for the session. Thank you, Mohsin. CIRC Chairman Sir Atul Malhotra ji, Vice Chairman Kishore Bhardiya ji, Secretary Lokesh Maheshwari ji, Treasurer Rajiv Gupta ji, Chairman Sikasa Anil Kumar Yadav ji, CA Sunil Mirza जी एंड CA आशिका टंडन। मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आपने मुझे सेशन चेयरपर्सन चुना है। अतुल सर, मैं अपने फर्म की ना तीसरी जनरेशन हूँ। जहाँ आपने आर्टिकलशिप किया आप सेकंड जनरेशन हुए और मैं आपके फर्म की हमारे फर्म की थर्ड जनरेशन हूँ। क्या बात है। CRC के द्वारा जो वाव सीरीज की जो पहल की गई है वो बहुत सराहनीय है। जो वुमेन CA घर में बैठ के काम करती हैं या फिर ऑफिस और घर दोनों संभालती हैं, उनके लिए अपने को अपडेट करना थोड़ा चैलेंजफुल होता है। वाव सीरीज में नए नए टॉपिक्स की जो वर्कशॉप अटेंड करने से उनको ना ही फायदा होगा बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है सेक्शन 12, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपनी के लिए जरूरी है? अगर हाँ, तो क्या कंपनी के बिगिनिंग में होना चाहिए या थ्रू आउट लाइफ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? और रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों जरूरी है? रजिस्टर्ड ऑफिस को रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, कब जाता है? इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करने से क्या पेनल्टी है, पेनल्टी किसको लगेगी, ये सभी की जानकारी आज के सेशन में हमें मिलेगी। हमारे साथ हैं CA मंजरी शर्मा जी, जो कि कंपनीज एक्ट में महारत हासिल है उन्हें। तो ओवर टू यू मंजरी जी, प्लीज स्टार्ट द सेशन। Manjari ji, are you there? Have we lost you? I think Manjari ji का internet connectivity का कुछ issue है. Let me get to her. Let me call her. Give me 2 minutes. चलिए, जब तक मंजरी जी का कुछ नेट का इशू हो गया है, नाउ शी इज कनेक्टिंग थ्रू हर मोबाइल। सो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं एक बार फिर से कि ये जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का जो प्रोग्राम है, इसके साथ साथ इसमें जो हमारे यंग जनरेशन के मेंबर्स हैं या जो हमारे बहुत सीनियर लोग भी हैं, मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, लेकिन दोनों के लिए ही एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है। द रीजन बीइंग, जो हमारे बहुत सीनियर्स हैं उनका अब सोचना है कि यार वो GST ऑडिट चला गया, टैक्स ऑडिट की भी लिमिट बढ़ गई, बैंक ऑडिट मिलता नहीं है, तो क्या हमारा फ्यूचर है प्रोफेशन का? और जैसे ही ऐसे ही यही सवाल लगभग हमारे यंग मेंबर्स के भी हैं। तो क्या है कि कोई भी प्रोफेशन हर 10-15 सालों में चेंज होता है। क्या हम उस चेंजेस को समझने में और उस चेंजेस की जो जरूरतें हैं उसको क्या चीजें उसमें करनी है उसके लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को तराश रहे हैं, या हमें
या हम सिर्फ एक कंप्लायंस ओरिएंटेड जो अभी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द हमारे भाई बहनों की है उसी पे चले जा रहे हैं, और हम कुछ अपने को फोकस करके ये देखना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे कि हमारा प्रोफेशन का भविष्य क्या है। अभी देखिए पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया, उसके बाद जो वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते हैं, तो उनको सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जो उनकी सारी चीजों को, उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो जब हमारे इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स के प्रोग्राम में बहुत सारे कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, वो अपने अपने कंट्रीज के प्रोफेशनल चैलेंजेस या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमसे और आपसे बात करेंगे, तो हमें और आपको ये जरूर महसूस होगा कि हम कैसे एक नेटवर्किंग के थ्रू या हम कैसे अपने एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस के सेटअप के साथ में कैसे क्या चेंजेस करने हैं, सो दैट हम उस स्ट्रीम में या उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। And Manjari ji is there. I am able to see her. Manjari, now it is fine? Yes, sir. Okay, Yes. okay. Over to Manjari ji for thank you. Thank you, sir. जी सर। सर सबको ऑडिबल हूँ मैं? Yes, audible है, और आपका ये PPT भी दिख रहा है, और Okay. आप स्टार्ट कर दीजिए अपना कोई। जी बिल्कुल दिख रहा है, मंजरी जी दिख रहा है। जी सर। कुछ होगा तो तो- मैं फोन कर दूंगा आपको। जी सर, थैंक यू। जी स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो दोनों सेक्शंस अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं। सेक्शन 12 बोलता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, और सेक्शन 13 बोलता है कि इन केस अगर मुझे मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ जाएगा तो मेरे लिए क्या क्या प्रोसीजर है और वो क्या क्या फॉलो करना है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो अगर मैं अपना अगर जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस ही है चेंज करने का, तो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर मुझे चेंज करना हो तो कब सेक्शन 12 लगेगा और कब सेक्शन 13 लगेगा, पहले उसको जानना है। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कवर करता है सेक्शन 13। तो अगर मुझे मेमोरेंडम को चेंज करना है तो क्या चेंज करना होगा उसमें? अगर रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज मुझे चेंज करना है तो वहां पे मेंशन क्या होता है? ना तो सिटी होता है, ना तो कोई आरओसी होता है, वहां पे जो लिखा रहता है वो है स्टेट। तो इन केस अगर मुझे स्टेट चेंज करना पड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम। तो वहां पे सेक्शन 13 फॉलो होने लगता है। और जब तक मेरा स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, जब तक मेरे मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन नहीं हो रहा है, तब तक सारी चीजें चलेंगी सेक्शन 12 के हिसाब से, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब आगे जब देखते हैं तो सेक्शन 12 आता है, जो बेसिक एक सेक्शन है जो बताता है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। अब हम एक एक सेक्शन करके समझते हैं कि क्या है उसमें। सबसे पहला जो सेक्शन बोलता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, वो बोलता है कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे या तो आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और इन केस अगर आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है विद इन 30 डेज। अब दूसरा, अगर आज हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक फॉर्म आता है स्पाइस। अगर हम स्पाइस फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन करना है या नहीं करना है। इन केस इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आप उसमें फिल कर देंगे, सारे अटैचमेंट्स लगा देंगे, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं से ही मेंशन हो जाएगा। लेकिन ये भी प्रॉब्लम होती है कि अभी तो कंपनी बनी नहीं है, अभी तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, एक लीगल पर्सन बनी नहीं है, मुझे सिन नंबर नहीं मिला। तो कैसे हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि रेंट एग्रीमेंट बनवा लें और अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन कर दे वहां पे? ये भी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोग पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, जब कंपनी आ जाती है, एक लीगल पर्सन यहाँ पे आ जाती है, फिर उसके बाद वो रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करते हैं। तो अगर ऐसा प्रोसीजर चल रहा है तो आपको इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को फिर इन्फॉर्म कर देना है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। इन केस अगर आपने इनकॉर्पोरेशन से पहले ही रजिस्टर्ड ऑफिस बना रखा है, स्पाइस में आप उसकी डिटेल फिल कर रहे हैं,
तो यहाँ पे फॉर्म 22 फिल करने की जरूरत नहीं है, वो चीज ये बताता है। जैसे सबसेक्शन 1 बोल रहा है अ कंपनी शैल, पहली चीज कंपनी के पास होगा ही होगा अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, कब? इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज, या फिर और ऑल टाइम thereafter have a registered office capable of receiving and acknowledging all communications and notices as may be addressed to। यानी हर कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा, और वो रजिस्टर्ड ऑफिस कैसा होगा? जहाँ पे सारी नोटिसेस आप रिसीव कर लो, जो भी कम्युनिकेशंस आपको सेंड करनी है आप सेंड कर दो इसी रजिस्टर्ड ऑफिस से। और हर एक कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है, पहली चीज। और दूसरा, इन केस अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनाया है तो विद इन 30 डेज आप यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस आरओसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सेक्शन बोलता है सबसेक्शन 2। एक नोट मैंने यहाँ पे डाला है कि अगर आपने स्पाइस प्लस फॉर्म में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन कर रखा है तो फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बताता है कि इंक 22 वहां पे फिल नहीं करने की जरूरत है, वहां पे आपको आरओसी को इंक 22 फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इंक 22 में वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है, स्पाइस प्लस में वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिर इंक 22 फाइल करना मैंडेटरी है। ये सबसेक्शन 2 बता रहा है। फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि एवरी कंपनी अपना नाम, अपना एड्रेस, ये अपना नाम और एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर मेंशन करें। एक बोर्ड जरूर होना चाहिए जहाँ पे कंपनी का नाम होगा, जहाँ पे कंपनी का एड्रेस पूरा नोट डाउन होगा, और इस तरीके से लिखा होगा कि वो लिजिबल हो, कोई भी पर्सन आपका नाम अच्छे से समझ सके, और उस लैंग्वेज में हो जो उस एरिया की जनरल लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, उस हिसाब से ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और नेम मेंशन होगा बाहर बोर्ड में। नेक्स्ट, और क्या होना है? और आपका नाम इनग्रेव्ड होगा लिजिबल कैरेक्टर में आपकी सील में, कॉमन सील में। अब क्या कॉमन सील आज के टाइम पे रखना मैंडेटरी है? अगर आज हम कॉमन सील ना, एक अमेंडमेंट आई थी 2015 पे जहां पे कॉमन सील को रखना ऑप्शनल कर दिया गया था। तो आज बहुत सारी कंपनीज कॉमन सील नहीं भी ऑप्ट करती हैं, कुछ ऑप्ट करती हैं। इन केस अगर आपने ऑप्ट कर रखा है तो आपको कॉमन सील में नेम इनग्रेव्ड करना होगा, ये सेक्शन 12 बताता है, मैंडेटरी है। फिर दूसरा पॉइंट सी क्या बताता है कि वो जो नेम है आपका, जो आप कुछ लेटर हेड्स में, जो आपके बिल हेड्स हैं, बहुत सारे जितने भी बिजनेस लेटर्स हैं, आप वहां पे कुछ चीजें मेंशन करेंगे जरूर। क्या क्या मेंशन करेंगे उसे बताता है। पहले आपकी कंपनी का नाम जरूर आएगा, आपकी कंपनी का एड्रेस जरूर आएगा, आपकी कंपनी का सिन नंबर जरूर आएगा जिससे वो आपको आइडेंटिफाई कर सके, आपका एक टेलीफोन नंबर जिसपे आपको कांटेक्ट किया जा सके, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट इन केस अगर है तो। ये सारी चीजें आपके सारे लेटर हेड्स में, सारे बिल हेड्स में, जितनी भी नोटिसेस और जो भी कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू कंपनी या टू कंपनी, उन सारी चीजों में ये सब चीजें मेंशन होंगी। एक पॉइंट ये बताता है। फिर एक आपका नाम, अगर कहीं भी आप हुंडीज में कोई काम कर रहे हो, प्रॉमिसरी नोट में कोई काम कर रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहा है, तो आपकी कंपनी का नाम वहां पे प्रिंट होगा। ये सेक्शन 12 मैंडेटरी कुछ फिगर्स बताता है कि ये चीजें आपकी कंपनी की होनी ही चाहिए, प्रोवाइडेड। और उसने क्या रूल बताया है? एक और भी चीज बताई है सेक्शन 12, एक और बताता है कि इन केस कभी आपका नाम चेंज हुआ हो फर्म का, कंपनी का, तो अगर विद इन 2 ईयर आपकी कंपनी का नाम चेंज हुआ है, विद इन 2 ईयर, तो आपको अपने न्यू नेम के आगे वो जो आपका फॉर्मर नेम है वो भी साथ में इंक्लूड करना है। तो अगर विद इन 2 ईयर आपकी कंपनी का नया नेम चेंज हुआ है तो 2 साल के बाद वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 2 साल अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो जब भी आपका न्यू नेम चलेगा आपका साथ में ओल्ड नेम भी वहां पे मेंशन होगा, ताकि कोई भी आपको जान सके कि आपका पहला नाम क्या था और अब आपकी कंपनी का नाम क्या हो गया। एक रिक्वायरमेंट। फिर एक और इन्होंने बोला है 1% कंपनी के केस में, कि इन केस अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है तो वहां पे ब्रैकेट में आप ओपीसी या 1% कंपनी जरूर मेंशन करेंगे।
अदरवाइज वो रिक्वायरमेंट अधूरी है। तो सेक्शन 12 आपको कुछ चीजें बताता है। पहला उसने क्या बताया कि आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ही होगा। दूसरा, अगर नहीं है तो विद इन 30 डेज आप आरओसी को इन्फॉर्म करिए। और अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया है तो आपकी कंपनी का नेम, वो एड्रेस आपकी कंपनी के बाहर मिलेगा, लिजिबल लेटर में होगा, जनरल लैंग्वेज में होगा, और वो जो आपका कंपनी का नाम है वो आपकी कॉमन सील में भी जरूर मिलेगा। और आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका सिन नंबर, टेलीफोन, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीजें आपके सारे लेटर हेड्स में होंगी। और अगर आप हुंडीज, प्रोमिसरी नोट या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे हैं तो वहां पे आपकी कंपनी का नेम जरूर प्रिंट होगा। 2 रिक्वायरमेंट इन्होंने प्रोविजो में और डाली कि इन केस अगर आपकी कंपनी का नाम विद इन 2 ईयर चेंज हुआ है तो आपको न्यू नेम के साथ फॉर्मर नेम भी अटैच करके लगाना होगा। और 1 पर्सन कंपनी हो अगर आप, तो अपनी कंपनी के आगे आपको ओपीसी भी जरूर मेंशन करना है। फिर सेक्शन 4 आता है, सब सेक्शन 4 ये बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है तो आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है विद इन 30 डेज। जब भी आपका चेंज हुआ है ना, आपको विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन आपको आरओसी को सबमिट करना है। और आरओसी को हम जब भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस की सिचुएशन बताएंगे वो होगा इंक 22 फॉर्म। इसमें हमारे जब रजिस्टर्ड ऑफिस की बात चलती है तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 4 सिचुएशंस होती हैं, जिसको कि मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताती हूँ। पहले हम लोग इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। या मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, उसमें 4 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, विद इन सिटी ही चेंज हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन कि सिटी तो चेंज हो रही है लेकिन आरओसी सेम है। थर्ड सिचुएशन, आरओसी चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट सेम है। और लास्ट सिचुएशन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो है एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो ये 4 सिचुएशन में हम कैसे कैसे क्या अप्रूवल हमको चाहिए, कौन सा सेक्शन अप्लाई कर जाता है, कौन से फॉर्म हमको फिल करने हैं, ये सारी चीजें इसमें आ रही है। जैसे अगर शॉर्ट में हम इसको देखें, विद इन सिटी की बात करें, विद इन सिटी में कौन सा सेक्शन को अल्टर नहीं किया, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। नेक्स्ट, अगर हम आरओसी के अंदर ही लेकिन सिटी के बाहर चले जाते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने, तो वहां पे भी मेरा मेमोरेंडम अल्टर नहीं होगा, वहां पे भी सेक्शन 12 ही कंप्लाई करेंगे। थर्ड सिचुएशन में जब हम आरओसी के बाहर जा रहे हैं, अब आरओसी जब हम ये सेक्शंस आराम से पढ़ेंगे तब वहां पे पता चलेगा कि केवल 2 ही ऐसे स्टेट है जहाँ पे एक से ज्यादा आरओसी है। तो ये बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया में आएगा ये सिचुएशन नंबर 3, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो अगर हम स्टेट के अंदर ही है लेकिन आरओसी चेंज कर रहे हैं तो क्या सेक्शन 12 या सेक्शन 13 में से कौन सा फॉलो होगा? तो भी सेक्शन 12 ही आएगा, क्योंकि अभी भी मेरा स्टेट वही है जो मेमोरेंडम में था। और थर्ड सिचुएशन में मेरा स्टेट चेंज हो जाएगा तो ये सेक्शन अब 12 के साथ साथ 13 भी कवर करने लगेगा। रूल सबके अलग है। अब अप्रूवल किस चीज की लगेगी? तो अगर हम विद इन सिटी में ही काम कर रहे हैं, विद इन सिटी में ही शिफ्ट हो गए हैं, तो हमें कोई शेयर होल्डर्स के परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई भी हायर लेवल पे परमिशन की जरूरत नहीं है। सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में देख लेंगे कि उनको कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे शिफ्ट करना है और उनकी अप्रूवल ही सफिशिएंट होगी, क्योंकि हम ज्यादा सिटी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एक जगह से बस थोड़ी जगह दूर जा रहे हैं। तो इसमें कोई हायर अप्रूवल और कोई भी ज्यादा कॉम्प्लायंसेस नहीं है। सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन हम पास करेंगे और हमारा ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। आरडी की अप्रूवल भी नहीं है, सिर्फ हमको क्या बताना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, स्टेट वही है, मेरा आरओसी भी वही है, बस सिटी भी वही है, बस सिटी में एक जगह से हम दूसरे प्लेस पे चले गए हैं तो हमें एक रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है, बस इसकी इंफॉर्मेशन इंक 22 में हमें सबमिट कर देनी है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। विद इन सिटी अगर हम चेंज कर रहे हैं अपना एड्रेस तो अगर हम वापस अपने सेक्शंस पे आते हैं, ये शॉर्ट, ये धीरे धीरे करके हमें कॉम्प्लायंसेस बताता है।
पॉइंट नंबर 4 ये बोल रहा था कि इन केस अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है तो आप इंक 22 में उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो सिंपल सा, सबसे सिंपल, और उसने क्वेश्चन उठाया कि क्या विद इन सिटी अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेंगे तो हमको सिर्फ इंक 22 फाइल करना है बस, और मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सब सेक्शन 5 में जाता है, इसने थोड़ा सा और कंप्लायंस बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक्सेप्ट में उसने बोला कि एसआर भी पास होगा बाय अ कंपनी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस आपका चेंज हो रहा है आउटसाइड द लोकल लिमिट। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट है तो आपका एसआर भी पास होगा। उसने पहली चीज बताई, क्योंकि सबसे पहली सिचुएशन में उसने ये नहीं बोला था कि एसआर पास होगा, लेकिन जैसे ही हम सिटी के बाहर जा रहे हैं उसने एक रिक्वायरमेंट डाल दी कि एसआर भी पास होगा बाय अ कंपनी। तो ये कौन सा केस कवर कर रहा है? सिटी के बाहर, जहाँ पे ये रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है आउटसाइड द सिटी, लेकिन आरओसी मेरा सेम है। तो एक पहली, अगर हम विद इन सिटी जाते हैं तो एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल बोर्ड रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी और मेरा ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा, इंक 22 फाइल कर देंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट, अगर हम सिटी के बाहर जा रहे हैं, सिटी के बाहर जाते ही इंक 22 तो फाइल करना ही करना है, लेकिन साथ में उसने एसआर की रिक्वायरमेंट डाल दी। अब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ जाएगा और आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं। फिर प्रोवाइडेड, जैसे ही वो प्रोविजो पे आता है उसने और रिक्वायरमेंट डाली। अब क्या है? प्रोवाइडेड that no company shall change the place of its registered office from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another. Within the same state unless such change is confirmation by regional director. अब मेरी सिचुएशन नंबर 3 कवर हो रही है, जहाँ पे हम स्टेट तो चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरा आरओसी चेंज हो रहा है। जैसे ही आरओसी चेंज होने की बात होती है, ये बोल रहा है अब आपको आरडी के भी परमिशन, वो तो था ही, एसआर तो इन्होंने बोल ही दिया था। सिचुएशन नंबर 3 पे इन्होंने आरडी की अप्रूवल भी बोल दी और कॉम्प्लायंसेस धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट मेरा आएगा कहाँ पे? कब मेरी एक ही स्टेट में 2 आरओसी हो सकते हैं? तो ऐसे सिर्फ 2 ही स्टेट हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यहाँ पे 2 ऑफिस हैं आरओसी के। महाराष्ट्र में हमारे पास 2 आरओसी हैं, एक पुणे और एक मुंबई, और तमिलनाडु में 2 आरओसी हैं, कोयम्बटूर और चेन्नई में। अगर इन 2 स्टेट में हम पुणे से महाराष्ट्र मुंबई जा रहे हैं या कोयम्बटूर से चेन्नई जा रहे हैं तो हमारा सिचुएशन नंबर 3 कवर हो जाता है। वहां पे इंक 22 तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एसआर भी जाएगा और आरडी की अप्रूवल भी आएगी। उसने थोड़ी कॉम्प्लायंसेस और बढ़ा दिया। फिर द कंफर्मेशन रिफर्ड, जो भी सबसेक्शन 5 में उसने बोला कि आपको आरडी की परमिशन की जरूरत है, वो सारी चीजें आप कम्युनिकेट करोगे within 30 days from the date of receipt of application by the regional director to the company, and company shall file the confirmation with the registrar within a period of 60 days. यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस चलता है कि आपको अब आरओसी परमिशन तभी देगा जब आरडी की अप्रूवल मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? पहले आरडी से अप्रूवल लो। आरडी से अप्रूवल मिलते ही आपको अपने आरओसी को इन्फॉर्म करना है और आरओसी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर देगा इंक 22 फाइल करके। ये सबसेक्शन 6 बोलता है। यह है पूरा प्रोसेस कि आपको आरडी को पहले करना है, आरडी कंपनी को अपनी कंफर्मेशन देगा, विद इन 30 डेज में अप्रूवल देगा, कुछ और भी प्रोसीजर है उनको फॉलो करके। फिर कंपनी अपनी आरओसी को बताएगा विद इन 60 डेज में कि हाँ कंफर्मेशन हमको आरडी से मिल गई है, और आरओसी विद इन 30 डेज में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर देगा। ये धीरे धीरे करके कॉम्प्लायंसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन पे एक रूल है, रूल 28, जो बताता है इसका पूरा प्रोसेस क्या है। जब विद इन स्टेट हम एक आरओसी से दूसरे आरओसी जा रहे हैं तो जो प्रैक्टिकली जो चीजें करनी है वो कुछ ऐसा बनाया गया है। जैसे पहला, सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग करनी है। पहले डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि हाँ हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा।
तो बोर्ड मीटिंग करने से पहले जो जनरल एक प्रोसीजर होता है कि 7 दिन पहले हम एक नोटिस देते हैं अपने डायरेक्टर्स को कि आपको मीटिंग करनी है, बोर्ड मीटिंग। फिर मीटिंग कंडक्ट होती है, वहां पे डिसाइड होता है कि क्या क्या करना है। तो पहले आपको सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है 7 डे की नोटिस इश्यू करने के बाद। उसमें डिसाइड करना है कि मेमोरेंडम चेंज होना है, कहाँ पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। फिर ईजीएम किस डेट पे होना है ये चीज डिसाइड होता है, और ईजीएम के लिए हम नोटिस इश्यू करते हैं। बोर्ड की परमिशन मिल गई, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई, बोर्ड डायरेक्टर्स ने बोला कि हाँ हमारा ये रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होना है। फिर दूसरा, अब आपको शेयर होल्डर्स की भी परमिशन चाहिए, तो शेयर होल्डर्स की परमिशन हम लेते हैं ईओजीएम में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करनी पड़ जाएगी अचानक से, इसलिए इसको ईओजीएम की कैटेगरी में रखेंगे। इसके लिए हम नोटिस इश्यू करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, और उसका प्रोसेस वही है कि कम से कम मीटिंग से 21 दिन के पहले हमको नोटिस इश्यू करनी है। नोटिस इश्यू करने के बाद हम अपना ईजीएम कंडक्ट करेंगे, वहां पे रिजोल्यूशन हमारा पास होगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा, इस जगह पे होगा। पूरा जैसे ही एसआर आपका पास हो गया, वो एसआर आपको आरओसी को फिल कर देना है, आरओसी को फाइल करना है। जितने भी रेजोल्यूशन पास होते हैं सब हम आरओसी को फाइल करते हैं एमजीटी 14 में विद चालान। तो विद इन 30 डेज आपने ये एसआर की इंफॉर्मेशन आरओसी को प्रोवाइड कर दी। फिर क्या करना है, एक अब आपको काम करना है कि आरडी को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आरडी की अप्रूवल भी यहाँ पे चाहिए। तो आरडी की अप्रूवल हमें चाहिए होती है इंक 23 में। आपको बहुत सारे पेपर्स बना के आरडी को इन्फॉर्म करना होता है, अप्लाई करना होता है कि कंपनी अपना ऑफिस चेंज करना चाह रही है। तो एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे इंक 23 में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। लेकिन एक और प्रैक्टिकल चीज, जब हम आरडी को इन्फॉर्म करते हैं तो हमें स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी इंटीमेट करना होता है। वो जो हमने पिटीशन बनाई थी आरडी के लिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आरडी को फर्निश करने के लिए बनाए थे, उन सब की एक कॉपी हमें चीफ सेक्रेटरी को भी इंटीमेट करनी होती है, तो वो भी हमें फाइल कर देना है। फिर आते हैं आरडी पे। आरडी को भी आपने फाइल कर दिया इंक 23। आरडी क्या करेगा, विद इन 30 डेज जब एप्लीकेशन आपकी रिसीव हुई, आपके एप्लीकेशन को देखेगा और कंफर्म करेगा अपनी अप्रूवल देगा या नहीं देगा। आपको अप्रूवल अपनी दे देगा। इसके बाद वो अप्रूवल आपको अपने आरओसी को बतानी है कि आरडी से अप्रूवल मिल गई। अब आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे, तो आरओसी को यहाँ पे 2 चीजें हमें प्रोवाइड करनी होती हैं। एक, जो हमारे आरडी का अप्रूवल आया है, और जो हमारे शेयर होल्डर्स ने हमको परमिशन दे दी है ट्रांसफर करने की, शिफ्ट करने की, वो दोनों परमिशंस को हम इंक 28 में अपने आरओसी को फाइल करते हैं। और आरओसी जैसे ही वो अप्रूवल देखेगा, वो विद इन 30 डेज आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए इन्फॉर्म कर देगा। मतलब आपको इंक 22 में आपको अपना फॉर्म फिल करना है, विद इन 30 डेज आपका वो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए परमिशन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म आ रहा है वो बहुत सारे हैं। पहला प्रोसेस क्या था, हमने बोर्ड मीटिंग की, फिर हमने एसआर पास करवाया। एसआर पास करवाने के बाद हमने सबसे पहले आरडी को इन्फॉर्म किया, आरडी को अप्लाई किया, और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी को भी हमने अप्लाई कर दिया कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं। थोड़े टाइम तक हम वेट करेंगे क्योंकि आरडी भी बहुत सारी चीजों को इवेल्युएट करेगा, फिर अपनी कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, अप्रूवल। वो अप्रूवल विद एसआर हमें क्या करना है, अपने आरओसी को बता देना है कि कंफर्मेशन मिल गई। और कंफर्मेशन मिलते ही हम अपने आरओसी को एक और फॉर्म इंक 22 के थ्रू अपना न्यू एड्रेस बताएंगे जहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होने वाला है। और जैसे ही हम उसको बताएंगे, हमारा आरओसी भी हमें कंफर्म कर देगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो गया। न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा न्यू एड्रेस के साथ में। आई होप ये वाला प्रोसेस सबको क्लियर होगा। फिर ये था हमारा जनरल रूल। इन केस अगर सिचुएशन नंबर 3 आ जाती है, क्योंकि 1 और 2 में तो बहुत इजी है। 1 में तो हम विद इन सिटी जा रहे थे, हमें कोई प्रोसेस ही अप्लाई नहीं करना, सिंपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फाइनल करना है कि क्या हमारा न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा और वो इजीली हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड में भी हम ज्यादा जा नहीं रहे, आरओसी ट्रांसफर हो नहीं रहा है, मतलब आरओसी मेरा नहीं शिफ्ट हो रहा है, तो इस केस में ज्यादा कोई कॉम्प्लायंसेस है नहीं। सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन नंबर 4 में थोड़ी कॉम्प्लायंसेस बढ़ती है। तो ये था हमारा सिचुएशन नंबर 3 जहाँ पे कुछ फॉर्म ज्यादा आए, कुछ अप्रूवल ज्यादा आई है। नेक्स्ट ये था रूल।
इसके बाद जैसे ही आपको आरओसी ने आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया, इसका मतलब है कि ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस है कि ऑल द रिक्वायरमेंट जो भी सेक्शंस की थी, जो भी इस प्रोविजन की थी, आपने प्रॉपरली कंप्लाई करी है, और जिस दिन से वो सर्टिफिकेट आपको इश्यू हुआ है, आपका रजिस्ट्री ऑफिस वहीं से माना जाएगा। इन केस अगर आपने कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रोविजन में डिफॉल्ट करी, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर जो भी हैं वो पेनाल्टी के लिए लायबल हो जाएंगे ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे during which the default continues not exceeding 1 lakh rupees। तो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से आप पे लाइबिलिटी चलती जाती है, जो 1 लाख रुपए तक आपकी पेनाल्टी चल सकती है। तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि हमको बहुत सारे यहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह फाइल करनी होती है, बहुत सोच समझ के हमें ये डिक्लेरेशन फाइल करनी है। इन केस अगर कुछ भी करेक्ट नहीं निकला, कोई भी सही नहीं निकला, तो हम पे पेनाल्टी भी लायबल हो सकती है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 9 क्या बोलता है? सबसेक्शन 9 बोलता है कि इन केस अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि उसको फिजिकल वेरीफाई करना है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वो फिजिकली वेरीफाई कर सकता है। और अगर उसके लगता है कि नहीं, आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई डिफॉल्ट करी है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं, या आपने गलत बताई है, या जो भी हो, अगर उसको लगता है तो वो क्या करेगा, आपका नाम, कंपनी का नाम रिमूव कर देगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से। तो अब आपका तो नाम ही चला गया, आपको दोबारा वो कॉम्प्लायंसेस और बेयर करने पड़ेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हम शिफ्टिंग कर रहे हैं बहुत क्लियरली करें, जो भी डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। इन केस अगर कोई इनकरेक्ट होता है तो आप पे लायबिलिटी आ जाएगी। और दूसरा, आपने शिफ्ट तो कर लिया, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रार कभी भी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को चेक करवा सकता है, वेरीफाई कर सकता है। अगर इन केस वो वेरीफाई करने के टाइम पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस उसको नहीं मिले या कुछ भी इन केस हो गया, तो वो आपका नाम रजिस्टर से हटा देगा। ये तो सेक्शन 12 था, जो सिंपल हमें छोटी छोटी चीजें बताता है कि अगर हमें चेंज करना होगा तो कैसे करना होगा। ये था शॉर्ट जो मैंने समरी बनाई थी, ये आई होप सबको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं, सेक्शन 12 अपना यहीं से खत्म हो जाता है। सेक्शन रूल, बहुत सारे सेक्शंस के साथ में इन्होंने रूल भी हम लोगों को बताए हैं कि कौन से सेक्शंस के साथ कौन से रूल हमें ध्यान देने हैं। फिर सेक्शन 12 खत्म होने के बाद सीधे हम लोग आते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 हमारा आता है ऑल्ट्रेशन। एक मिनट, अभी नहीं है, वहाँ आपसे बात करो। अरे ऑनलाइन क्लास ठीक, सेक्शन 13 की बात करते हैं। ये हमें मेमोरेंडम चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें बताएगा। हम मेमोरेंडम में हमारे 5 क्लॉजेस होते हैं। नेम चेंज करना हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना होगा तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये सारे हमें एक एक करके बताता है। तो सबसे पहले सेक्शन जो 1 आया, एक मिनट, ये सेक्शन 13 ये बोल रहा है इन केस अगर कंपनी को अपना मेमोरेंडम चेंज करना है तो एसआर पास करवाना है। उसने सिंपल सबसे पहले एक बर्डन डाला कि एसआर पास होगा, ये तो कॉमन पॉइंट है कि एसआर तो पास होगा। फिर वो धीरे धीरे बताता है कि इन केस अगर नेम चेंज करना है तो क्या करना है। तो सबसे पहले उसने बोला इन केस ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी आपको क्या करना है, एसआर तो चल ही रहा है, वो तो मेन में चल ही रहा है। फिर अगर आपको नेम चेंज करना है तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ सेक्शन 4, जहाँ पे आपको नेम जो कुछ आपको नहीं लेने हैं वो आपको नहीं लेना है, वो वाले सेक्शन के बताता है। ये बोलता है एसआर के साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए इन राइटिंग। यानी जैसे ही हम कंपनी के नेम की तरफ जाते हैं चेंज करने के लिए, एसआर जो उसने बोला था वो तो होगा ही होगा, साथ में उसने आ गया कि सीजी की परमिशन भी आपको लेनी लगी होगी, एक और अप्रूवल आ गई, वो चेंज लेंगे। प्रोवाइडेड no such approval shall be necessary where the only change in the name of company is the deletion therefrom
or addition thereto of the word private consequent on the conversion of any class of companies. Simple, अगर जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में जा रहे हैं या लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, तो ये आपका कोई ऑल्टरेशन नहीं है सच, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज और कोई नाम अगर आप चेंज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट बोलता है कि जैसे ही आप अपनी कंपनी का नेम चेंज करोगे, वो जो रजिस्ट्रार है शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, और आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा विद द न्यू नेम, और वो जो चेंज होगा आपकी नेम ऑफ कंपनी में वो इफेक्टिव हो जाएगा ऑन द इश्यू ऑफ सच अ सर्टिफिकेट। ये सिंपली नेम चेंज करने में हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल एक एसआर पास करना है, क्योंकि वो तो करना ही करना है, हमें अपने मेंबर्स की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। मेंबर्स की परमिशन के साथ साथ, क्योंकि हम नेम चेंज कर रहे हैं, अभी हम किसी और नाम से जाने जाते थे, अब हम किसी और नाम से जाने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की भी जरूरत है, हायर अथॉरिटी जरूर आ जाती है। और अगर वो चेंज ऐसा ही है कि प्राइवेट से लिमिटेड में जा रहा है, लिमिटेड से प्राइवेट में जा रहा है, तो इसको हम नेम नहीं बोलते, नेम चेंज नहीं बोलते, यहाँ पे सीजी की परमिशन नहीं है, बस आरओसी को आपका अप्लाई करना है, वो आपका नेम चेंज कर देगी और सर्टिफिकेट आपका इश्यू कर देगी। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट फिर आते हैं नंबर 4 पे, सबसेक्शन 4। ये बोलता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए। अब हम इसकी लैंग्वेज अगर देखेंगे तो अभी भी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम हो रहा है, लेकिन किस सब्जेक्ट में, रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अभी मेरा मेमोरेंडम चेंज हुआ क्योंकि वहां पे स्टेट था, अब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो ये मेमोरेंडम मेरा आ गया है सबसेक्शन 4 में। ये बताता है कि इन केस अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसने बोला है सिंपल, आपका तब तक रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं होगा अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। तो जो एसआर पास करवा रहा था, जो कॉमन सेक्शन उसने बोला था सबसेक्शन 1, वो एसआर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में अब आपको आरडी की अप्रूवल भी लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। और सिंपल वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी आरडी रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दी है, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं लेकिन आरडी को जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। तो एसआर के साथ अब हमें आरडी के भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी आरडी उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज बहुत लंबा टाइम है। इस टाइम में आरडी बहुत सारी चीजों को चेक करेगा कि कहीं मेरे क्रेडिटर्स के साथ कोई धोखा ना हो रहा हो, कि हम लोग पूरा स्टेट ही चेंज कर रहे हैं, या मेरे एम्प्लॉइज के साथ कुछ ना हो रहा हो। तो वो चीजें बहुत सारा वो टाइम लेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये रीजनेबल शिफ्टिंग है ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इन केस अगर उसको लगता है वो सेटिस्फाई है, तो आपका ऑल्टरेशन वो कंफर्म कर देगा। इसके लिए वो 60 डेज का टाइम लेता है। और जैसे ही आपको आरडी की अप्रूवल मिल जाएगी, वो आरडी की अप्रूवल प्लस जो एसआर आपने मेंबर से पास करवाया था, वो अप्रूवल आप आरओसी को फर्निश कर देंगे कि मैंने दोनों से अप्रूवल ले ली, जो मेरे ओनर थे शेयर होल्डर्स उनसे, प्लस क्योंकि स्टेट शिफ्ट हो रहा है तो आरडी की परमिशन थी वो भी मिल गई है। ये दोनों चीजें हम आरओसी को अपना सबमिट कर देंगे तो वो शिफ्टिंग मेरी अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 7 बोलता है where an alteration of the memorandum result in transfer of registered office of a company from one state to another state, तो certified copy of order of central government जब भी अप्रूव हुई है shall be filed with the registrar of each of the state। ये आरडी की अप्रूवल और आपको रजिस्टर ऑफिस जो शिफ्ट करना है, ये दोनों आरओसी को बताना है, पुराने आरओसी को भी जहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस न्यू आरओसी को भी जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको वहां पे सबमिट करनी है और आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। हम जब स्टेट चेंज करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है और उस पे अप्लाई हो जाता है रूल 30। ये बहुत ही कॉम्प्लायंस वाला रूल है।
इसमें बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, एसआर हम तब पास करेंगे जब बोर्ड मीटिंग हो चुकी होगी, बोर्ड ने डिसाइड किया होगा। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस इश्यू करना पड़ेगा कि ईओजीएम होने वाली है, आ जाओ। फिर एसआर पास करवाएंगे। ईओजीएम जब होगा वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। रिजोल्यूशन पास होने के बाद जो मिनट्स बनते हैं वो भी प्रॉपरली बनेंगे। नॉर्मली लोग नहीं बनाते, एसआर पास कर लेते हैं, मिनट्स नहीं बनाते, लेकिन मिनट्स आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि जब आप आरडी को अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट में वो मिनट्स भी मांगेगा आपसे, तो मिनट्स भी बनाने पड़ेंगे आपको। फिर ये क्योंकि एसआर पास हो गया है, आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है एमजेटी 14 में। एमजेटी 14 में आप अपना फाइल करोगे विद इन 30 डेज, ये प्रोसेस चल रहा है। ये एक नया पॉइंट आया, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है इन इंक 26। ये क्या है? ये एक एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट है। जब हम स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होते हैं तो इंक 26 एक फॉर्मेट बताया गया है। वहां पे कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है कि हम अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं। इन केस अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो या तो आप हमें ऑब्जेक्ट करो या फिर आप हमारे आरडी का भी एड्रेस वहां पे होता है, या तो आप आरडी को इन्फॉर्म करो कि आपको क्या ऑब्जेक्शन है। फिर जो कंप्लायंस करनी होगी वो की जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट करी जाती है और वेट किया जाता है थोड़े टाइम का। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने आरडी को, क्योंकि हमें आरडी की अप्रूवल चाहिए, अब हम आरडी को अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऑनलाइन जो फॉर्म्स जाने हैं वो तो जाने हैं। रिक्वायरमेंट ये हमें फिजिकल फॉर्म भी देने हैं उनको। एक पिटीशन तैयार करनी होती है जिसमें हम आरडी को बताते हैं कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं। उस पिटीशन के साथ बहुत सारे एनेक्सर्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या है एक लंबी सी लिस्ट है। एक बार मैं उसको रीड आउट कर देती हूँ कि जब हम पिटीशन बनाएंगे विद द फॉलोइंग एनेक्सर्स, कौन कौन से एनेक्सर्स? पहला, ऑल्टर्ड एमओए, क्योंकि एसआर पास हो चुका है, एमओए ऑल्टर हो चुका होगा, एओए ऑल्टर हो चुका होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिट रिपोर्ट, ये भी लगेगा। लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इनकी लिस्ट लगती है। एमजीटी 14 जो आपने फाइल किया था ऐसा उसको आरओसी को विद पेमेंट रिसीट, ये आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नोटिस ऑफ ईओजीएम विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो एक्सट्रैक्ट है ऑफ ईओजीएम, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। बहुत सारी डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स को देनी पड़ती है। 2 डायरेक्टर्स, उसमें से एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और एक नॉर्मल डायरेक्टर, वो दोनों डिक्लेरेशन देते हैं। एफिडेविट भी उसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। नॉन रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एक डिक्लेरेशन ये जाती है। कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो इंक 26 में आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया था उसकी एक प्रॉपर कॉपी, ओरिजिनल क्लिप उसमें जाती है। और जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो भी 2 लैंग्वेजेस में होता है, एक इंग्लिश जो कॉमन लैंग्वेज है और वहां की लोकल लैंग्वेज में जो आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया था। ये 2 न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स है आप वो भी फर्निश करते हो आरडी को। कॉपी ऑफ एक्नॉलेज टू चीफ सेक्रेटरी और आरओसी, आपने जो भी पिटीशन, जो भी डॉक्यूमेंट आरडी को दे रहे हो वही सेम पिटीशन, वही सेम एनेक्सर्स डॉक्यूमेंट चीफ सेक्रेटरी और आरओसी को भी सबमिट करने पड़ते हैं। एक एफिडेविट होता है वेरीफाइंग द क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट बाकी है, क्रेडिटर्स को किस नेचर का पेमेंट बाकी है, चाहे वो क्रेडिटर्स हो वो डिबेंचर होल्डर्स हो, इनकी पूरी लिस्ट जाती है। और वो क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स वेरीफाई करता है हमारा सीए। सीए का एक सर्टिफिकेट भी जाता है जो क्रेडिटर्स की अमाउंट वगैरह को वेरीफाई करता है। एक एफिडेविट होता है जिसमें हम बताते हैं प्रोवाइडिंग पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन द न्यूज़पेपर एंड सर्विस ऑफ नोटिस टू चीफ सेक्रेटरी एंड आरओसी। यहाँ पे एक और एफिडेविट बनाते हैं कि हमने चीफ सेक्रेटरी और आरओसी को भी नोटिस इशू कर दिया है इसके रेस्पेक्ट में। फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बीआर ऑथराइजिंग द सीएस टू प्रेजेंट पिटीशन, आपके बिहाफ पे ये पिटीशन कौन प्रेजेंट कर रहा है उसकी एक ऑथराइज्ड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी भी सबमिट होती है। मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, जो भी सीएस आपको प्रेजेंट कर रहा है उसकी एक कॉपी मेमोरेंडम प्रेजेंट होती है। एक एफिडेविट और लगता है जिसमें हम
कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन आपके लिए पेंडिंग नहीं है, क्योंकि ये आपका एफिडेविट है। बहुत जितने भी एफिडेविट बन रहे हैं बहुत सोच समझ के फाइल करने हैं। इन केस फ्यूचर में कोई इंक्वायरी निकल आई या इन्वेस्टिगेशन निकल आई तो आप पे पेनल्टी के चांसेस हैं। तो आपको ये भी एफिडेविट कर देना होता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी आपके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है। इस चीज का भी एफिडेविट देना होता है कि जो भी रूल 30 आपको जो भी कॉम्प्लायंसेस बता रहा है वो सारे आपने प्रॉपरली कंप्लाई किए हैं। एफिडेविट एक इस चीज का भी लगता है कि फ्यूचर में अगर आपका कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज निकल आता है तो आप उसको पे करोगे। इसका भी एक एफिडेविट दोनों डायरेक्टर साइन करते हैं। एक एफिडेविट लगता है वेरीफाइंग द पिटीशन बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जो आपका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो सीएस हो या सीए हो, वो भी एक एफिडेविट फाइल करता है कि हाँ पिटीशन उसी ने फाइल किया है और वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक एक्नॉलेजमेंट होता है क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स का कि उन्होंने आपको परमिशन दे दी है या नहीं दे दी है। साथ ही साथ अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, क्योंकि मैंने इंक 26 में एडवर्टाइजमेंट किया है कि कोई ऑब्जेक्शन हो तो हमको बोलो या तो आरडी को बोलो। इन केस अगर क्रेडिटर ने आपको बताया, डिबेंचर होल्डर ने आपको बताया, तो आपने काउंटर रिस्पॉन्स क्या किया, इन सब की एक कॉपी जाती है आरडी के पास में। बहुत एक लंबी लिस्ट है एनेक्सर्स की। ये सारी चीजें पूरे बंच के साथ हम पिटीशन के साथ फाइल करते हैं आरडी को, और इसके लगभग 3 सेट बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजें हैं। इसके 3 सेट जाते हैं, एक आरडी के पास, एक चीफ सेक्रेटरी के पास और एक आरओसी के पास। भेजने के बाद ये तो गया फिजिकल फॉर्म। इसी से रिलेटेड हमें फिर ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करने होते हैं। आरडी को इंक 23, आरओसी को GNL 1 और चीफ सेक्रेटरी को कोई फॉर्म नहीं। लगभग ये 2 फॉर्म भी हम सबमिट करते हैं, इंक 23 आरडी के लिए और GNL 1 आरओसी को सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट, आरडी क्या करता है, थोड़े टाइम तक वेट करता है। या तो आरडी को भी ऑब्जेक्शन रिसीव होंगे और पार्टीज और क्रेडिटर्स, जो भी कंपनी और क्रेडिटर्स है उनके बीच में कोई कंक्लूजन निकल आया कि हाँ क्रेडिटर्स इतने, क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं आपको शिफ्ट नहीं करना है, तो कोई ना कोई एक फाइनल पॉइंट तो होगा जहाँ पे दोनों लोग रेडी हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्शन आया लेकिन कंसेंसस भी आ गया है, तो इस केस में आरडी क्या करेगा, हियरिंग होल्ड करेगा, फिर ऑर्डर देगा कि आप उस कंसेंसस को रिकॉर्ड करो और अपना ऑर्डर पास कर देगा विद इन 60 डेज। एक फाइनल कोई ना कोई जजमेंट आ गया है कि इस टाइप से आप पेमेंट करोगे, क्रेडिटर्स को फ्री करोगे, इसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो तो कर दो। विद इन 60 डेज में ये सारा प्रोसेस होगा और आप शिफ्ट कर जाओगे। या फिर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है लेकिन कोई भी फाइनल पॉइंट नहीं निकला, उस केस में क्या होगा, तो आरडी क्या करेगा, आपको शिफ्टिंग से तो नहीं रोक सकता लेकिन आपसे ऑब्जेक्ट एफिडेविट साइन करवाएगा कि जो आपको ऑब्जेक्शन रिसीव हुए हैं आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये एफिडेविट आप उसको फर्निश करो और इसके बाद आरडी आपको ऑर्डर पास कर देगा विद इन 60 डेज। ये 60 डेज का टाइम इसीलिए है ताकि वो जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उनको क्लियर कर सके। इन केस अगर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आता ना आपके पास ना आरडी के पास, तो बिल्कुल ही क्लियर है, एप्लीकेशन आपकी पास हो जाएगी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। आरडी बहुत जल्दी आपको अप्रूवल दे देगा। बस एक बार आरडी से अप्रूवल मिल जाए फिर सारी चीजें शिफ्ट हो जाती है। आरडी से अप्रूवल आ गई, 2 चीजें ही हमें चाहिए थी फिर से, जैसे सिचुएशन नंबर 3 में चाहिए था वैसे सिचुएशन नंबर 4 में भी चाहिए था। बोर्ड मीटिंग पास करवा ली, एसआर पास करवा लिया और सबसे मेन इंपॉर्टेंट था आरडी की अप्रूवल मिल जाए। आरडी की अप्रूवल मिल गई, बस केस इजी। आपको वो आरडी की अप्रूवल और एसआर फाइल कर देना है आरओसी को, और आरओसी को हम बताते हैं इंक 28 में कि दोनों अप्रूवल हमें मिल गई। जैसे अप्रूवल मिल जाएगी आप अपने इंक 22 में न्यू आरओसी को इन्फॉर्म कर दोगे कि अब ये मेरा नया रजिस्टर्ड ऑफिस है और यहाँ पे हमें शिफ्ट होना है। रजिस्टर्ड ऑफिस को वो वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस प्रोवाइड कर देगा। जिस दिन से वो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है उसी डेट से मान लिया जाएगा कि आपका नया रजिस्टर्ड ऑफिस हुआ है। ये था अपना सिचुएशन नंबर 4। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 चीजें देखी। इन केस नेम चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, बहुत सिंपल था।
दूसरा, इन केस अगर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लायंस वाला पॉइंट यही वाला है, ये भी क्लियर। इसके बाद आ जाता है कि इन केस अगर हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। मेमोरेंडम में नेम चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट चेंज करने को हम कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, उसमें भी ज्यादा कोई कॉम्प्लायंसेस नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो ये प्रोविजो ना आपके साथ में आ जाए। सेक्शन 8 आता है, बोल रहा है अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी, ये सेक्शन 8 और उसके बाद सेक्शन 7, एक मिनट, सेक्शन 7 तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चल रहा था। इसके बाद सेक्शन 8 में आ जाते हैं और सेक्शन 8 अपना बता रहा है ये ऑब्जेक्ट ऑफ चेंज करने के लिए। तो उसमें भी उसने बहुत एक पॉइंट डाला है कि कंपनी which has raised money from public through prospectus and still has any unutilized amount out of the money so raised shall not change its object for which it raised the money through prospectus unless a special resolution is passed by the company. अब आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, बस उसने ऑब्जेक्शन कौन से वाले पॉइंट पे उठाया कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू कोई मनी रेज करी थी तो वो जो मनी है आपकी उसी, क्योंकि हम जब प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि आपका पैसा कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं, और अब आप कहाँ कहाँ पैसा यूटिलाइज करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ही चेंज करने जा रहे हो, तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है कहीं ना कहीं वो मिस यूटिलाइज हो सकता है, या उस पर्पज से शेयर होल्डर्स ने आपको पैसे दिए ही नहीं थे, अब आप बोल रहे हो पैसे लगाने के बाद कि हम ऑब्जेक्ट चेंज करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रोसीजर लेंदी कर देंगे। अगर आपका ऐसा पैसा लिया है आपने और वो अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, यानी शेयर होल्डर का पैसा अभी भी रखा है पुराने वाले ऑब्जेक्ट में यूज करने के लिए, और अब आप जा रहे हो अपना ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए, तो पहला आपको एसआर पास करवाना होगा। पहले उन मेंबर से तो परमिशन लीजिए जिनका पैसा आपके पास रखा हुआ है। जब आप लेंगे, एंड द डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल आल्सो बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, और आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज करने जा रहे हो, ये आपको न्यूज़पेपर के थ्रू भी वहां पे पब्लिश करनी है कि आपका ऑब्जेक्ट चेंज होने जा रहा है। वेयर इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो वहां पे आपको एक तो इंग्लिश लैंग्वेज मेन वो चीज उसमें करना है, और प्लस एक जो लोकल लैंग्वेज है वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। इन केस अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी आपको बताना है कि आप ऑब्जेक्ट चेंज करने जा रहे हो। फिर या तो शेयर होल्डर्स आपको परमिशन दे देंगे या तो शेयर होल्डर्स आपको परमिशन नहीं देंगे। इन केस अगर परमिशन दे देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर परमिशन नहीं देते हैं तो वो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है आपको इनके साथ बात करनी है। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय द प्रमोटर। आप उनको क्या अपॉर्चुनिटी दोगे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट चेंज करें, तो अगर आप एग्जिट होना चाहते हो तो एग्जिट हो जाओ, एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज अगर आप चाहते हो नहीं एग्जिट होना तो आप रहिए, लेकिन हम ऑब्जेक्ट चेंज करने जा रहे हैं। फिर क्या बोलता है कि रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम with respect to the object of company or certify the registration within a period of 30 days। बस आप एक बार एसआर ले लो, जैसे ही आपका एसआर आ गया आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया अपना ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए, आप क्या करोगे अपने आरओसी को इन्फॉर्म करिए, आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। और इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट चेंज करने में ऐसी कोई कॉम्प्लायंसेस नहीं है। बस यही ध्यान रखना है, हम छोटे मोटे अगर ऑब्जेक्ट कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना है। आप बस बोर्ड मीटिंग करिए, एक बार एसआर पास करवा लीजिए और जीटी 14 फाइल कर दीजिए, हो गया आपका ऑब्जेक्ट चेंज। लेकिन अगर आप इस मनी वाले पॉइंट पे जा रहे हैं कि शेयर कैपिटल अनयूटिलाइज्ड है,
तो आपको ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, अदरवाइज सिंपल है। नेक्स्ट में क्या बोला है, सबसेक्शन नंबर 10, no alteration made under this section shall have any effect unless it has been registered in accordance with the provision of this section। जब तक आरओसी आपका रजिस्ट्रेशन ले नहीं लेता, प्रोविजन को अप्लाई नहीं कर देता, तब तक आपका ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होगा। और सबसेक्शन 11 आ जाता है, एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी मेरा नेम खत्म हो गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने वाला पॉइंट खत्म कर दिया इन्होंने, ऑब्जेक्ट क्लॉज मेरा चेंज करने के लिए इन्होंने सेक्शंस बता दिए। अब एक लास्ट आ रहा है कि इन केस अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल उसमें नहीं है, तो इन केस अगर मुझे वो चेंज करना हो तो क्या चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या बताया है कि अगर कोई पर्सन, आप उसको पार्टिसिपेट करने का राइट दे रहे हैं इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अदरवाइज देन एज अ मेंबर शैल बी वाइड। अगर वो मेंबर नहीं होगा फिर भी आप उसको डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो आपका वाइड होगा। अदरवाइज आप इस वाले लायबिलिटी क्लॉज को भी चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी मेमोरेंडम में हमारे पॉइंट आए थे, नेम चेंज करना वो इजीली हो गया, जो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने वाला पॉइंट था उसका क्या प्रोसेस है ये भी हो गया, जो इन्होंने ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने के लिए बोला था वो भी हो गया, और लास्ट में इन्होंने लायबिलिटी क्लॉज को चेंज करने के लिए बताया कि चेंज कर सकते हैं, तो वो भी इजीली हम चेंज कर सकते हैं। बस सेक्शन 13 हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है। और उसमें एक जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज था उसके लिए इन्होंने एक रूल प्रोवाइड किया है, रूल 32। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा हम इजीली चेंज कर देंगे, लेकिन इन केस अगर कहीं फंड रेज हुए हैं थ्रू पब्लिक प्रोस्पेक्टस, तो रूल 32 आ जाता है और वो बोलता है आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लाई करना है। क्या? कंपनी विच हैज रेज्ड फंड थ्रू पब्लिक प्रोस्पेक्टस वो अल्टरेशन नहीं कर सकती टू इट्स मेमोरेंडम अगर आपका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा हुआ है, अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। आपको एसआर पास करवाना है। फिर क्या करना था? न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना है। अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनसे आपको डील करना है और एक फाइनल कंक्लूजन पे निकलना है कि क्या करना है। या तो वो रुकेंगे, अगर उनको जाना है तो आप उनको एग्जिट ऑप्शन भी देंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको जो भी पास करवाओगे, ये ध्यान रखना है कि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होगा। एसआर हम बहुत सारे तरीकों से पास करवाते हैं, लेकिन इस केस में आपका एसआर पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होगा। और जब हम नोटिस दे रहे होंगे ईओजीएम की, while drafting the notice for the EOGM, आपको कुछ चीजें मेंशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स का ही मेन पैसा फंसा हुआ है। तो उनको नोटिस में आपको बताना है, नोटिस में कि कितना पैसा आपको रिसीव्ड हुआ था, उसमें आपने पुराने ऑब्जेक्ट में कितना पैसा यूटिलाइज कर लिया, कितना अनयूटिलाइज्ड पैसा बचा हुआ है कंपनी के पास, आप ऑल्ट्रेशन क्या करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, और ये ऑल्ट्रेशन करने का जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करिए कि क्यों आप ऑब्जेक्ट अपना चेंज कर रहे हैं, और जो नया ऑब्जेक्ट है आप उसमें कितना पैसा यूटिलाइज करने जा रहे हैं, और अगर आप ये वाला पैसा अपने नए ऑब्जेक्ट में यूटिलाइज करते हो तो कंपनी की अर्निंग पे और कैश फ्लो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इम्पैक्ट भी आपको बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो प्लेस करना है, एन इंटरेस्टेड पर्सन कैन ऑब्टेन द कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ एसआर। अगर किसी को भी लगता है कि उसको कॉपी चाहिए तो आप उसको वो प्लेस बताओगे जहां से ये आपको एसआर आप उसे प्रोवाइड कर सको, और जितने भी इस चीज से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब आप उस नोटिस में मेंशन करोगे, तब एसआर पास होगी। तो इसमें भी नोटिस सिंपल सिर्फ इतना नहीं करना है कि हम ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं आइए मीटिंग करिए। उस नोटिस में आपको क्लियरली बहुत सारी चीजें मेंशन करनी होंगी कि ये चीजें हैं, ताकि आप सोच समझ के आए और एसआर पास होने वाला है और डिसीजन अपना बहुत सोच समझ कर दें। ये है हमारा सेक्शन 13। उसमें जो ऑब्जेक्ट क्लॉज का रूल इन्होंने बताया था, रूल 32, उसका प्रोसेस पूरा ये है।
मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकता है। Thank you, Manjri ji, for a very informative session. I think हमारे attendees and viewers को हर चीज समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस को आपने एक्सप्लेन करा। एंड मुझे तो वो टेबल और वो स्लाइड हमेशा ही याद रहेगी कि कितनी सरलता से जो है आपने जो है सेक्शन 12 की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक छोटे से टेबल में उतार दिया। आई एम श्योर द व्यूअर्स आर ऑफ द सेम ओपिनियन that it was a very the information was presented in a very easy to learn and easy to understand format. I request all the participants to send in your questions in the chat box. If you have any question, please feel free to send those in the chat box. अगर किसी को भी कोई भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है फिलहाल। Looks like that we don't have many questions from the audience. I have one question. So what happens if I file a form and I forget to comply with one of the conditions when I'm changing my registered office? What happened in those cases? कौन सा फॉर्म आपने फिल नहीं किया? नहीं, फॉर्म मैंने फिल कर दिया, पर जैसे मैं अपना जो है जनरल रेजोल्यूशन लगाना भूल गई या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगाना भूल गई, तो उस केस में क्या रहता है? कुछ नहीं, आपकी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट अधूरे हैं। आपको वापस रीसबमिशन के लिए एक बार मेल आएगी कि आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए। अगर आप दोबारा एक बार सबमिट कर देंगे तो वह आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा मैम, इवन आई हैव अ क्वेश्चन। जी, जस्ट इन केस मेरा जो ऑब्जेक्टिव आपने कहा कि अगर प्रोस्पेक्टस में हम लोग शेयर होल्डर्स के पैसे लेते हैं और इवेंचुअली वो हमारा मोड ऑफ बिजनेस नहीं होता है, हमारा मोड ऑफ बिजनेस कुछ और है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम मेरा ये मोड ऑफ बिजनेस तो चलेगा बट मैं इसी कंपनी के विद इन एक और काम करना चाहता हूँ, तो विल दैट इज अलाउड? देखिए, और कि हमें भी आप काम करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा, या तो आप मेरे पुराने ऑब्जेक्ट के अंडर ही पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर न्यू ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया आप उसमें भी एसेंट दे देते हैं अपनी, तो उसमें भी आपको पैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्ट तो मेरे लिमिटेड ही रहेंगे। अगर एक एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है जो एचआर वाले उसमें कर रही है, सर्विस दे रही है, नाउ ही टेल्स मी कि मैम जैसे ये एम्वे का बिजनेस अगर मैं एक फॉर्मेट है जिसमें कंज्यूमर ओरिएंटेड है, मैम मैं उसमें भी करना चाहता हूँ बट मेरा कंपनी का नाम यही रहने दीजिए, विद इन द कंपनी आई विल लाइक टू डाइवर्सिफाई माय बिजनेस। आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं कि नेम? आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं कि नेम? हाँ, तो ऑब्जेक्ट में एडिशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें न्यू एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा ना, रादर देन विद इन द सेम कंपनी में करूं। पहली चीज, अगर आप चाह रही हैं कि ये नया ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए तो सिर्फ आप ही अकेले शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि मुझे एसआर पास करवाना है, वो भी एसआर है, मतलब 75% लोग हाँ बोल रहे हैं, तो मुझे तो आपका ये ऑब्जेक्ट सबके सामने सबमिट करना पड़ेगा। अगर सब उसको अप्रूवल दे देते हैं तो ठीक है। पहली चीज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मान ले, पहले तो हम खुद मान ले कि हाँ वो ऑब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए, फिर आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हम सबके सामने रखेंगे। अगर सब अप्रूव कर देते हैं तो ठीक है, फिर आपके तरीके से बहुत सारे लोग और भी पैसा लगाएंगे फिर मेरी कंपनी में उस ऑब्जेक्ट में। ये अलाउबल है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं।
एज लॉन्ग एज हम लोग एसआर से परमिशन ले रहे हैं, मेजॉरिटी हमारा शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, तो जब तक शेयर होल्डर्स उसका अप्रूवल नहीं देंगे हम उसको कैसे यूटिलाइज कर लेंगे? Thank you. अच्छा, और किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी? मंजू जी, एक मेरी क्वेरी थी कि जैसे अगर कोई फॉरेन कंपनी होती है और उसकी जो पेरेंट कंपनी है आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, उसने नेम चेंज कर लिया और वो वहीं पे ही उसने अपना रेजोल्यूशन वगैरह सब पास करके वहाँ की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी और नेम चेंज कर लिया है, तो यहाँ की सब्सिडरी उसको तो अपना नाम चेंज करना ही पड़ेगा, तो उस केस में भी क्या जो है क्या ये प्रोविजंस इसी तरह से अप्लाई होते हैं? नहीं, नेम तो मेरा वही रहता है, नेम तो मेरा वही रहता है, मेरा नाम नहीं चेंज होता है। मेरी आप एसेट और लायबिलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मेरा नाम तो मेरा ही रहता है ना, तो आप अपना नाम चेंज करिए, मेरे नाम पे तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें मेमोरेंडम कहाँ से चेंज हो जाएगा? अच्छा, ओके। ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में भेज दें। मंजरी जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बट अगर कुछ आपको और कुछ आपके दिमाग में कुछ और हो तो वी हैव सम टाइम, तो अगर आप कुछ और एक्सप्लेन करना चाहें या डिस्कस करना चाहें तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 15-20 मिनट्स। सर, एक चीज जैसे मैंने अभी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया था, क्योंकि और वो भी सबसे 4th लेवल पे ही हम सीधे चले गए थे कि स्टेट प्रॉपरली चेंज हो गया था। Yes. तो मैंने बहुत सारी चीजें चेक करी, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज हो रही थी, वो प्रैक्टिकल चीज जितनी भी मुझे सेक्शंस में और रूल्स में बताए गए थे वो बिल्कुल ही अलग था। कहीं रूल में नहीं बताया गया कि मुझे फिजिकल कॉपी भी सबमिट करनी है, लेकिन जब हम आरडी को अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे तो फिजिकल कॉपी लगती है, इवन बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत सारे एफिडेविट, और ये भी नहीं बताया जाता है कहीं पे, सिर्फ इतना है कि डिक्लेरेशन आपको देनी है, लेकिन डिक्लेरेशन किस फॉर्म में देनी है, उसमें एफिडेविट लगना है, नोटराइज होना है, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता। ये जब प्रैक्टिकली आप करते चलेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा आपको दोनों डायरेक्टर से एफिडेविट चाहिए थी। ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड मीटिंग में मैंने एक को ऑथराइज कर दिया कि जहां भी साइन होगा या डीएससी लगेगी तो आपकी लगेगी, लेकिन जब एफिडेविट हो रहा था तो एफिडेविट में सारे डायरेक्टर्स को वहां पे एफिडेविट देना था, तो हर डायरेक्टर्स एफिडेविट भी दे रहा है, उसको नोटराइज भी करना है, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये पढ़ने में तो फिर भी सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे तो आपको सिर्फ कंफर्मेशन लेने से आरडी में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, जबकि 60 डेज का टाइम बोला गया है। फिर आपको वही कॉपी चीफ सेक्रेटरी को भी सबमिट करनी है, फिर आपको वही कॉपी आरओसी को भी सबमिट करनी है, और सबसे पहले आपको चीफ सेक्रेटरी और आरओसी को सबमिट करनी है, क्योंकि वो जो हम लोग को रिसीट मिलती है स्पीड पोस्ट की, वो भी फिजिकल कॉपी आरडी को सबमिट करनी पड़ती है कि आपने दिया था अभी कि नहीं दिया था। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, वो बहुत लेंदी है। ये फिजिकल सबमिशन वाली बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि when everything is online and but ऑनलाइन तो सिर्फ बोलते हैं, पहले तो लोग फिजिकल कॉपी वहां पे मिलती है तब वो ऑनलाइन फॉर्म चेक करते हैं। ओके, इट्स वेरी गुड, आपसे बहुत कुछ then I think there is no any so no we query. don't have any questions from the audience. I questions don't नहीं है audience के पास अभी। so कोई क्वेश्चंस नहीं है मुझे लग रहा है, तो क्वेश्चन नहीं आ रहे ऑडियंस से। आई थिंक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, एंड ये जैसे मंजरी जी ने कहा कि ये प्रोसेस जितना सिंपल पेपर पे लगता है उतना प्रैक्टिकली उतना सिंपल है नहीं। सो आई थिंक वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि हम क्लाइंट को बेटर सर्विसेज दे सके और ये प्रोसेस उसके लिए जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल करें। सो इट वाज अ गुड, आई थिंक ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा ये समझने के लिए कि देयर आर, पहले आप डिसाइड करिए कि आप क्या चेंज ला रहे हो,
फिर आप वो देखिए कि कौन सा क्लॉज उस चेंज में जो है अप्लाई करता है, फिर उस क्लॉज के अंदर आप एक लिस्टिंग कर लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, फिर स्टेप बाय स्टेप वो डॉक्यूमेंट्स बना के उसको सबमिट करें, जैसे मंजरी जी ने बताया. So we have with us the session chairman as well. Ma'am, would you like to add some comments? मंजरी जी ने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है, तो और कुछ बोलने के लिए वर्ड्स नहीं बचते हैं. थैंक यू मंजरी जी. आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो पूरा ही मतलब निचोड़ के बता दिया. मतलब प्रैक्टिकली जो फेस करते हैं हम लोग फील्ड में, थ्योरेटिकल अलग होता है, प्रैक्टिकल उससे बहुत ही डिफरेंट होता है. तो थैंक यू एवरीवन. अच्छा सेशन था. एक चीज और कि अगर आप शिफ्ट करना चाहें तो आप अपने क्लाइंट को भले बता दीजिए कि 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है आरडी की अप्रूवल 3 महीने में मिलेगी, फिर आरओसी को आप सबमिट करोगे वो 30 दिन में अपना कंफर्मेशन देगा, कुछ पेपर्स रेडी करने में लगभग 15-20 दिन लग जाते हैं, तो 4-5 महीने तो इजीली पास आउट हो जाता है. तो क्लाइंट का बीच बीच में इतनी बार फोन आता है कि क्या हुआ प्रोसेस का, क्या हुआ प्रोसेस का, उसको बताते बताते हम लोग थक जाते हैं कि नहीं अभी अप्रूवल नहीं आई है, और उसको लगता है पता नहीं काम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं. नहीं, बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक वहां पे क्लाइंट को देना कि क्या टाइमलाइन रहेगा उस प्रोसेस के लिए, एक ब्रीफिंग इंट्रोडक्टरी में इस चीज को इंक्लूड करना आई थिंक इफेक्टिव रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल चीजें डिफिकल्ट होती हैं, डिफरेंस होती हैं, एंड टाइम कंज्यूम होता है हर स्टेप पे. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो हमारे न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस बात को आपने जितने अच्छे से बताया उसको समझे और अपने क्लाइंट को फर्स्ट मीटिंग में ये चीज ब्रीफ करें, उसको एक टाइमलाइन में ये वाली सिर्फ जो लीगल डेट्स है उनको नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जो डिलेज है उनको भी इंकॉर्पोरेट करके बताएं, ताकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग सही रहे. अतुल जी, मुझे लग रहा है आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें. मैं ये कहना चाह रहा था जैसा अभी आपने कहा, और कि अभी क्या हो रहा है ना कि एक समय था कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स काफी कंपनीज एक्ट के प्रैक्टिस में या कंप्लायंस में इन्वॉल्व थे, बट कंसिडरिंग द वेरियस प्रेशर वर्क एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी स्लाइटली हम लोगों ने थोड़ा कंपनीज एक्ट पे ध्यान देना कम कर दिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेहतर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ी फील्ड भी है कंसल्टेशन की एज वेल, बिकॉज एज फार एज आवर इनकम टैक्स इज कंसर्न, जीएसटी इज कंसर्न, ऑडिट इज कंसर्न, ये तो हमारी कोर फील्ड है. बट कंपनीज एक्ट का कंसल्टेशन एंड जो अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जो प्रैक्टिस है, though it may not be available for our newcomers because उसमें कुछ टाइम लिमिट है कि वो 10 साल के पुराने प्रैक्टिशनर ही उसको कर सकते हैं, but it is going to be a very very big field for our professionals. आज आप इनकम टैक्स के नाम पे, टैक्स ऑडिट के नाम पे जो भी हमारी प्रोफेशनल फीस है उसमें एक देयर इज ए सेट पैटर्न ऑफ द प्रोफेशनल फीस मोर और लेस, सिटी वाइज देयर इज ए मोर और लेस फिक्स है. But as far as Companies Act is concerned, I can tell you several examples where we have paid lakhs of rupees fees for company matters while we consulting to the experts. They are chartered accountants, mostly they are chartered accountants. There is company secretaries as well, but still my personal view is that we should focus on the consultation of the Companies Act. Yeah, I just wanted to add this with our viewers. So over to. जब से कोरोना आया है, कोरोना जैसे डायरेक्टर्स कहीं और रहते हैं, उनका रेसिडेंस कहीं और है, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और है, तो वो जो मीटिंग्स कंप्लाई करना, क्योंकि पूरा साल 2 साल ऐसे ही निकल गया, तो बहुत सारे कंपनीज वाले अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज कहीं और के हैं, डायरेक्टर्स कहीं और के हैं और कंपनी कहीं और रजिस्टर्ड है. तो इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल, कोविड एंड पैंडेमिक has forced us to look at our businesses and see how much it is relevant, how much we can change the businesses to make it more productive and easier for not just
the clients but also for the employees and the stakeholders. So ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि pandemic has forced us to just review our own organization, review how the company is structured to make sure that it is seamless both ways for clients and for also for the people who are associated with the company in different forms like employees, directors and different stakeholders. And definitely these sections have come into play when we want to implement those changes. And as Sir said very rightly, that it is a great opportunity, professional opportunity for chartered accountants to come forward, advise the company rightly and grab the opportunity. Though for many of us, we believe that this is a company secretary's area, so hum thode hesitant ho jate hain, but that is not the case. As chartered accountants, we are well versed in the Companies Act and we are able to advise on these matters. And I would also like to take the opportunity to thank CA Neha Gupta for her remark in the chat box. आप लोगों का appreciation ही है जो हम लोगों को ये session को continue करने के लिए and motivate us to continue doing this. So thank you so much for your appreciation. Moshini ji, I just wanted to add one more thing. कि जैसे ना, why I am saying that it may be a very good opportunity for our chartered accountant, because we are knowing income tax, we are knowing GST, we are knowing Negotiable Instrument Act, we are knowing some other acts as well. So if we add the Companies Act as our core field of consultation, then whenever anyone visits, take example of a startup company. If anyone who is just starting the company, a startup company is there, so he wants that you as a chartered accountant is knowing each and every thing which is being needed, which is being required for all the registration and compliances under various acts of our profession. So that is why it is very important now that we should focus on this Companies Act program, because there are a huge, वहाँ पर penalties बहुत हैं, वहाँ पे जो fine है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से उसमें आदमी को थोड़ा सा fear लगता है कि मेरा compliance proper होना चाहिए, हमें कोई भी late fees नहीं लगनी चाहिए, और हमारे statutory जो compliances हैं वो इतने important हैं as far as companies are concerned, LLPs are concerned. LLP भी एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें हमारे प्रोफेशनल्स काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसकी डीड की ड्राफ्टिंग है। LLP की अगर बात करें तो ड्राफ्टिंग ऑफ डीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक एक शब्द उस डीड का डिसाइड करेगा कि आपने क्या डीड में लिखा है। वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में जब आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स के साथ कोई डिस्प्यूट होता है या हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो पार्टनरशिप डीड की जो LLP की डीड लिखी गई है, तो ड्राफ्टिंग ऑफ डीड इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यू कैन से द कंसल्टेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। सो ये बहुत अच्छा विषय है जिस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, और जरूर इसका फायदा हमारे मेंबर्स को लेना चाहिए। और अंत में मैंने चैट बॉक्स में लिखा भी है कि हमारी जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं, ये हमारी एक इच्छा है, पहल है, आप सब लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बट हमारी फीमेल मेंबर्स को और आगे आना चाहिए, बिकॉज मेरे को अभी ढूंढना पड़ता है। मैं देखिए रांची से ले आया सोनिका जी को और तो मैं मेरे दिमाग में कोई भी नाम, तो ऐसे बहुत से हमारे फीमेल, आज की डेट में 30% से 40% हमारी फीमेल मेंबर्स हैं जो हमारे प्रोफेशन में हैं। ठीक है, जॉब में भी हैं, बट प्रैक्टिस में भी बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा आगे आएंगे। जो हमारे बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं उनको तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन मंजरी शर्मा जी को सुनने का मौका शायद हमको नहीं मिलता अगर ये पहल हमारी तरफ से नहीं होती। तो मंजरी जी की नॉलेज सिर्फ एक अपने तक ही सीमित रह जाती। आज कम से कम हमारे 200 मेंबर्स ने सुना, कभी कोई क्वेरी होगी तो मंजरी जी से बात भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपस में एक नेटवर्क भी डेवलप होता है। ये नेटवर्किंग जो हमारी इंस्टीट्यूट ने एक गाइडलाइंस दी है, तो इनडायरेक्टली ये नेटवर्किंग का भी एक रास्ता बन सकता है कि यू आर सिटिंग इन रांची, मंजरी इज इन कानपुर, मोहसिन इज इन लखनऊ, सम अदर मेंबर में बी फ्रॉम सम अदर सिटी। जब हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं तो इस तरह से एक आपका नेटवर्क भी तैयार होता है और उसमें एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हम
अकेले नहीं है और हमारे साथ पूरी टीम है और हम आपस में बात करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सो नाउ मेरी बात तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। और मोहसिन जी प्लीज। अच्छा, I वोट ऑफ think थैंक्स। we've lost contact with Moshni. So thank you, ma'am. Thank you, sir. It's really nice कि एक नया initiative लिया गया है. So thank you, Atul Mehrotra sir, for organizing this fabulous Women on Wednesday session, which promotes female CA, young CAs like us to be part of this platform. It is truly innovative way to provide a larger platform to us. And updating of a knowledge is very important. तो ये platform वो हमें updating of the knowledge में बहुत support करेगा. From henceforth, all of us, I think हम लोग किसी का भी session होगा, हम लोग इसका part रहेंगे. Thank you to the session chairman, C. Sonika Thapa ma'am, taking our time and joining us from Ranchi. Thank you, ma'am. And to our speakers, ये मंजरी शर्मा ma'am, thank you ma'am. ये बहुत ही important topic था. हम लोग बहुत छोटी चीज समझते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, वो हो जाएगा, बट इट हैज सो मच ऑफ कनेक्शंस. सेक्शन 12 और सेक्शन 13 का जो आपने बाइफिकेशन दिया था टैबुलर फॉर्म में, मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है उसका. इट इज लाइक अब उसे बिल्कुल ही क्रक्स में हमें समझ में आ गया कि कहाँ पर वो सेक्शंस अप्लाई करेंगे. सो थैंक यू मैम फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू गिवन अस. And to all the participants who have joined us, and हम लोग के initiative को, सर के initiative को मैंने बोला है कि बहुत अच्छा है, तो ऐसे on and on सर और organize करेंगे. Thank you to each and every one of you. It was a good session, a good knowledgeable session, और ये time कब चला गया पता ही नहीं चला. Thank you all of you. Thank you, Anshika, for your kind words, and sorry for the technical glitch there. But as Anshika said, that it was an informative session. It was a great learning opportunity for freshers, and an opportunity to refresh our knowledge for the learned ones. I am thankful to the CIRC for putting this together, and especially thankful as a women for the Women on Wednesday series. It gives us immense pleasure to be associated with this initiative, and thank you for all the participants. It is the participants, the love and the when you participate in large number, the appreciation that you show is our only motivation to keep this going. Thank you once again to Atul ji for making this possible. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am.